हेलो एवरीवन। सो गाइस, सीईटी का फाइनली जो कैप राउंड 3 था उसका अलॉटमेंट आ चुका है। Congratulations to a lot of students. Apparently, a lot of colleges have seen a lot of movement in the seats. तो सिमसरी में भी बहुत ज़्यादा सीट्स हिली है, वेलिंगकर में भी बहुत ज़्यादा सीट्स हिली है. A lot of students have upgraded their colleges. Good. But I would say that this is an extremely sad scenario that we are in right now. Let me explain what is happening at this point. CET cell is या फिर CET में admission लेना, the way that they are treating it is literally like students की life के साथ game खेल रहे हैं लोग, कि जिसको जो मिला वो मिला, कोई अपनी सेफ्टी नहीं देख सकता। एंड अगर किसी ने अपनी सेफ्टी देखी तो भाई तुम्हारी टॉप कॉलेज चली जाएगी। दे आर लिटरली, ये एट दिस पॉइंट सट्टा खेलने जैसा हो गया है। इट इज जस्ट अ वेजर दैट यू आर डूइंग। यू आर ट्रेडिंग अवे अ सेफ सीट फॉर a bit, sorry, you're trading away a better seat because तुम्हें safety चाहिए, which is not how it should be. The process that CET cell should have should be a student first process, not an institute first process. I'll explain what this means. Like, let me just explain this extremely properly. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें यहाँ पे सीईटी कैप राउंड में प्रोविजनल अलॉटमेंट में तुम्हें अपनी कॉलेज मिल जाएगी। लेट्स लुक एट जेबीआईएमएस एंड सिम्सरी। ये जेबीआईएमएस और सिम्सरी का लिस्ट है। Look at this. Obviously, now the point is, in your mind you will think that अरे हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस जेबीआईएमएस था, सेकंड प्रेफरेंस सिम्सरी था, तो जेबीआईएमएस वाले को हायर परसेंटाइल होगा और सिम्सरी वाले को लोअर परसेंटाइल होगा। बट दैट इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड। ये देखो, सिम्सरी का दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट जस्ट केम टू माय माइंड। हर कैटेगरी में ऐसा होगा ही। मैंने सिर्फ एसटी कैटेगरी का देखा है, and I'm not naming any student, please ignore the names. I'm just saying that ये देखो, now this student had a 97.43 percentile from the ST category, ended up getting SIMSRI. Now ST category has gone down till 92.24%. Well, that is not what we are looking at. Now this person, obviously, if इसके ऊपर इसका first preference would have been JBIMS, but he has gotten SIMSRI. What about JBIMS? JBIMS में जिसको नया एडमिशन लगा है ना, I'm rubbing out the names again because I don't want to defame anybody. This is not a against student video. This is an against CET cell वाला video. यहाँ देखो 97.21 percentile got an admission, but इस बंदे को 97.43 है. Should this person not have gotten admission? It's as simple as that. That ये allotment कौन से basis पे हो रहा है? And I'll tell you what has happened. So now the point is that because after all of the discussion and considering everything that has happened, I've called the CET cell multiple times. Okay. एंड उन्होंने जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, जो मैंने भी मेरी वीडियो में समझाया, कि अगर तुम्हारा सेम कॉलेज तुम्हें वापस अलॉट हुआ तो फ्रीज नहीं होगा, तुम वापस बेटरमेंट अप्लाई कर सकते हो। वो लोग पूरी अपनी बात से पलट गए हैं। एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी एट दिस पॉइंट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज दैट, तो जो सिनेरियो हुआ है दैट इज, अगर तुम्हारा कॉलेज फ्रीज हो गया एंड तुम्हें बेटरमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, अगर तुम्हारा कॉलेज फ्रीज हो गया तो फिर तुम्हारे नीचे वाले बंदे को भी ऊपर वाली कॉलेज मिलेगी, पर तुम बेटरमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। The only reason why you will not get the top college is because तुमने अपनी सेफ साइड रखने के लिए JBIMS, सिम्सरी और वेलिंकर तीनों डाला था। Now I'll tell you exactly why I believe that this has happened. For example, this person. Now this is my student. Very proud of him. But now look at this. Now, obviously, I've rubbed out a name, but I'm telling you that is my student. I called him. मैंने कि ऐसा है। He said कि सर मैंने सिर्फ JB डाला था लिस्ट में, मैंने सिम्सरी डाला ही नहीं था। But just on the other hand, now there is another student of mine. She had gotten SIMSRI and she was the topper in SIMSRI. But now the point is that उस बंदी को by logic she should have gone to JB, but उसका SIMSRI उसको फर्स्ट राउंड में मिला था। She, for a safe side, what she had done was that JB सिम्सरी डाला, JB सिम्सरी वेलिंकर तीनों डाले थे। सिम्सरी अलॉट हुआ एंड देन शी पुट इन फॉर बेटरमेंट की JB मिल जाए तो अलॉटमेंट के लिए डालता हूँ या फिर डालती हूँ। बट शी पुट इन बेटरमेंट एंड बाद में उसको सेकेंड राउंड में तो JB नहीं लगा, पर इन दिस राउंड शी शुड हैव गॉटन JB, राइट? बिकॉज सीट्स खाली रही है, 2 सीट्स खाली हुई है। शी कुड नॉट अप्लाई फॉर बेटरमेंट बिकॉज उसका ऑटो फ्रीज हो गया। नाउ शी वाज लाइक कि सर बट मेरा परसेंटाइल तो है जाने लायक, एंड मैंने ऐसा भी नहीं, मैं तो खाली सेफ्टी के लिए डाला था। आई पेड द 1000 रुपीज फॉर बेटरमेंट, पर मेरा बेटरमेंट नहीं हुआ। देन आई डोंट नो व्हाट आई एम चार्ज्ड फॉर। And she filled the form, or she did everything basis the instructions that CET cell themselves had given. But now what they have done is that उनका कहने का मतलब अब ये है
अगर तुमने सेफ साइड रखने के लिए भी अगर नीचे वाली कॉलेज डाली और तुम्हें अलॉट हो गया, तो तुम उसके साथ चिपक गए। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू एट दिस पॉइंट इज, और व्हाट शी कुड हैव डन एट दैट पॉइंट वाज दैट, सिमसरी का अलॉटमेंट मिला, बेटरमेंट मत डालो, कुछ मत करो। तो अगर जेबीआईएमएस मिला तो मिला, अगर सिमसरी एंड अगर जेबीआईएमएस नहीं मिला तो सिमसरी भी तो उसके हाथ से चला जाएगा। बेसिकली उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इफ यू वांट टू ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज देन बी एट अ रिस्क कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बोलना चाहता है सीईटी से। एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी ना। वो पहले वाली सीट इस स्टूडेंट ने कमाई है अपने आप से। शी हैज अर्नड दैट सीट बाय स्कोरिंग वेरी वेल इन द एग्जाम। दे आर लिटरली एट दिस पॉइंट सेइंग दैट यू प्ले पोकर विथ योर फ्यूचर। अगर तुम्हें एडमिशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हाँ, किसी को तो मिल ही जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तरीके से वो सिर्फ कॉलेजेस को बोल रहे हैं तुम फट 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 अपनी सीट्स भर लो, और बाकी स्टूडेंट्स का जो होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, which is a very very bad approach. I genuinely believe the CET cell should not have done this. This is an extremely bad approach. And last year तक वैसा नहीं था। लास्ट ईयर तुम्हारा ऑटो फ्रीज तभी ही होता था अगर तुम्हारा लास्ट राउंड तक तुमने बेटरमेंट अप्लाई किया है और फाइनली कुछ तुम्हारा चेंज नहीं हुआ तो ऑटो फ्रीज हो जाओ, लास्ट राउंड के बाद देयर इज नो बेटरमेंट। दैट इज हाउ ऑटो फ्रीज शुड हैपन, नॉट लाइक दिस। या फिर अगर तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें कॉलेज मिल गई तो फिर ऑटो फ्रीज हो जाता था, पर अभी वैसा नहीं है। एंड दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। आई वुड सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स सीरियसली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। स्टूडेंट्स नीड टू लुक इनटू द मैटर एंड स्टूडेंट्स नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग। बिकॉज तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम पोकर का गेम नहीं खेल रहे हो दैट यू आर प्लेइंग ऑन द चांस और कैटेगरी और समथिंग लाइक दैट। दिस इज फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे आर प्लेइंग विद, एंड very very delicate futures, and playing in a very very bad manner. So yeah, it's, I would say, extremely, first of all, congratulations to all the people who got in, but for all the people who could not get in, or all the people जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, because it is truly just injustice to you guys. It is not your fault. It is quite literally the fault of the CET cell, and we are all in this scenario very sadly together, and I wish this wasn't the case. My request to CET cell would be that please, थोड़ी थोड़ी अक्ल और थोड़ी शर्म तुम लोग रखो, and please make sure that you guys don't repeat this next year. You already screwed up careers of hundreds of students this year. Please don't make it a habit. ठीक है, चलो, for all the people who got in, congratulations, and for all the people who couldn't, I'm really sorry for that, and I wish I could have helped you. All I can do is just tell you that okay, you know what, next year के लिए ज़्यादा अच्छे से prepare करो and make sure that you are not the ones who is at the receiving end of whatever scenario where we are at right now. I hope this video is helpful everyone.